So yesterday we had spoken about the day, you know, how to keep track. एक day कब start होता है, कब खत्म होता है. So we decided sun is the obvious choice for keeping track of time because civil life is guided by the sun. Sunrise होता है तो सब लोग उठ जाते हैं, काम पे जाते हैं. But the sun that we see, the true sun or the apparent sun, we realized after going through a few diagrams that it is not a very reliable body to give us exact duration of the day. We realized that some days may be smaller, some days may be longer because of what? There were 2 points. Anybody wants to answer? Eccentricity. Yeah, because the path was elliptical and the other eccentricity of Earth's orbit. Obliquity. Yeah, obliquity of the ecliptic. इससे ऐसे मालूम पड़ता है कि sometimes the duration may be little less, sometimes the duration may be little more. So अगर हमको exact घड़ी बना के every day एक ही period का हो 24 hour का तो वो suit नहीं कर रहा था. So apparent solar time or true solar time is based on the apparent motion of the actual sun. Interval between two successive returns of the sun to the local meridian. ये रिपीट हो रहा है क्या? LHA. We discussed hour angles in the previous class last week, but here we were trying to connect it with the time. Yesterday we saw LMT देखा हमने और GMT देखा और दोनों का डिफरेंस से लॉन्गिट्यूड निकला. It is the same like LHA GHA. LHA GHA हम लोग प्रिंसिपल मेरिडियन से मेजर करते हैं एंड टाइम इफ इट इज सोलर ऑब्जर्वेशन तो कहाँ से मेजर करते हैं? एंटी मेरिडियन एंटी मेरिडियन 180 डिग्री ऑपोजिट से, क्योंकि जो सुपीरियर मेरिडियन है, मेन मेरिडियन, वो डे लाइट में है 12 बजे. सो वी ऑलवेज गो बैक, रात को दिन स्टार्ट करते हैं. सो लोकल आवर एंगल वी नो द डेफिनेशन GHA प्लस माइनस लॉन्गिट्यूड. ये फर्स्ट सेशन में हमने किया था. सो LAT local apparent time is equal to LHS sun plus 180 degrees. It is the angle between the inferior celestial meridian of the observer and the celestial meridian passing the true sun. All measurements are westerly. तो 180 डिग्री पीछे ये. Just to revise, so the slides I am not spending too much time because we have done all this yesterday. Book से देखा, फोटो डायग्राम भी हमने बोर्ड में बनाया. So this diagram may not be very clear to you in the sense, but since you know about that the first point of Paris star is very far away, हम बोलते हैं कि एक ही डायरेक्शन में है. But sidereal day, if we are doing numericals considering a star, then the sidereal day to be taken is 23 hours 56 minutes 4 seconds या 4.09 second to be exact. This is one rotation of 360 degrees. But one rotation of 360 degrees में Earth क्या होता है? Does it remain at the same point? No. No, sir. It moves a little ahead. It moves a little ahead. So you can see second position of the Earth. तो वो जो ग्रे कलर का ट्रायंगल है वो एंगल एक्स्ट्रा कवर करना पड़ता है अर्थ को और द सन टू कम इनटू द मेरिडियन. समथिंग लाइक दिस. एक डिस्टेंस स्टार है, पहले दिन एक ही लाइन में रहते हैं और दूसरे दिन स्टार तो उसी डायरेक्शन में दिखता है, बट द अर्थ हैज टू रोटेट अ लिटिल मोर.
Earth has to rotate a little more. एक मीन सन है तो हम मीन सन को 24 आवर्स, मीन सन इज आवर कन्वीनियंस, इमेजिनरी सन जो हमने बनाया. So don't go into these figures, that's why I didn't explain this. So reverse direction में फिर extra समझना पड़ेगा. True sun is the actual sun that moves along the ecliptic at varying speeds. Mean sun is an imaginary sun moving along the equinoctial. There's a difference. Mean sun हमारा imaginary sun है, उसको हम equinoctial पे imagine करते हैं चल रहा है. True sun तो अपना जहाँ पर है वहीं रहेगा, ecliptic है उसका path. At a constant speed equal to the average speed of the true sun. Average speed of the true sun का मतलब क्या है? दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे एक ही जगह से, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस, और एक साल बाद वहीं दोनों एक ही टाइम पर पहुंचेंगे. इन बिटवीन जैसे हेयर एंड द टॉर्टोइज है, अगर ट्रू सन कभी स्लो हो जाता है या सो जाता है, डजंट मैटर, उठ के फिर फास्ट चल पड़ता है, बट मीन सन एक ही स्पीड पे चलता है. मीन सन इज द सन विच इज यूज्ड फॉर टाइम कीपिंग. तो यस्टरडे वी सॉ दैट द एल्मनाक टाइमिंग्स आर ऑल GMT, ग्रीनिच मीन टाइम. मीन टाइम का मतलब है कि वो मीन सन को यूज कर रहा है. तुम्हारे रिस्ट वॉच जो है या मोबाइल पे जो घड़ी है वो भी 24 आवर्स एवरी डे 24 आवर दिखाता है, क्योंकि वो मीन सन से मीन टाइम रख रहा है. इक्वेशन ऑफ टाइम. तुम देखो इक्लिप्टिक पे रेड सन चल रहा है, ट्रू सन. इक्विनॉक्शियल पे मीन सन चल रहा है, ब्लू वाला. दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और घूम के एक ही टाइम पे वापस आ जाते हैं. So equation of time is not a equation, it is a difference between the mean time and apparent time measured from the same meridian at any instant. तो ये ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ टाइम निकालने के लिए हमेशा किसको किससे माइनस करोगे? हायर वैल्यू को लोअर वैल्यू से. हायर वैल्यू टू लोअर. LMT minus LAT. हमेशा मीन, हाँ, हमेशा मीन सन से अपैरेंट सन. LMT माइनस LAT, GMT माइनस GAT. अगर आवर एंगल दिए हैं GHA, अगर दिया है GHA मीन सन माइनस GHA ट्रू सन, LHA मीन सन माइनस LHA ट्रू सन. हमेशा मीन से ट्रू करोगे, बड़ा चाहे जो भी हो, छोटा चाहे जो भी हो. अगर LMT बड़ा है तो आंसर क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ टाइम का ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा. हाँ, पॉजिटिव आएगा. इक्वेशन ऑफ टाइम मिनट्स, आंसर मिनट्स में आएगा, ज्यादा नहीं होता, 16 मिनट होता है. कोई बात कर रहा है क्या या मेरे से बात कर रहा है? किसी का माइक ऑफ ऑन है सर. माइक ऑफ रखो, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन मत करो. और अगर LAT कम है, LMT ज़्यादा है तो पॉजिटिव आएगा. अगर LAT ज़्यादा है, LMT कम है तो नेगेटिव आएगा. yesterday we did some example, no? मेरिडियन पैसेज एक में 12:02 था और एक में 11:53 था. याद है नहीं याद? यस सर, वेल नेक्स्ट किया था. हाँ, तो जिसमें इक्वेशन ऑफ टाइम जिसमें मेरिडियन पैसेज 11:53 था उसमें -7 आया था, और जिसमें मेरिडियन पैसेज 12:02 था उसमें +2 आया था. और LAT का क्या वैल्यू लेते हैं हम लोग एवरी टाइम? LAT कितने बजे होता है? ये जो मेरिडियन पैसेज 1200. मेरिडियन पैसेज का LAT 1200 है. बट अगर जिन लोगों ने नून साइट ली है उनको याद होगा
कि मेरिडियन पैसेज का लोकल टाइम कैलकुलेट करते हैं 11:50, 11:55, 12:05, 12:10 ऐसे आता है। तो वो क्या एक्चुअल लोकल टाइम होता है क्या, जो मेरिडियन पैसेज लेते हो जहाज पे? जिसने लिया है प्लीज आंसर। Has anyone taken a noon site? Yes or no? उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। द शिप इज कंटिन्यूसली मूविंग, सो योर longitude is continuously changing, your LMT is continuously changing। लेकिन शिप पे तो जो हम टाइम रखते हैं सुबह से शाम सेम रखते हैं ना, तो हम शिप में कौन सा टाइम रखते हैं फिर? So zone time. हाँ वी कीप 70। जोन टाइम, जोन टाइम रखते हैं। जिस लॉन्गिट्यूड में अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसी जोन टाइम को रखते हैं। हम लोग क्यों रखते हैं अप्रोक्सीमेट जोन टाइम? हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, मान लो इंडिया से गए, हमको अफ्रीका या यूरोप जाना है, रोज थोड़ा थोड़ा रिटार्ड एडवांस करने के बजाय जब पहुंचे एक दिन पहले ही सारा कर लो। ऐसे भी कर सकते हैं, सी में हमको कौन रोक सकता है, जो मर्जी हम करें। व्हाई डोंट वी डेली डू मोशन दैट? खराब हो जाती है ना, सनराइज और सनसेट। डेली सनराइज सनसेट खराब हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा सर नून मेरिडियन टाइम। पैसेज के टाइम पे हाँ वेरी गुड, मेरिडियन पैसेज रोज का खराब हो जाएगा नून टाइम। तुमको लगेगा 10 बजे सुबह ही मेरिडियन पैसेज हो गया, ये 4 बजे हो रहा है शाम का मेरिडियन पैसेज, तो सिविल लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। तो घड़ी एडवांस या रिटार्ड इसी तरीके से होता है, ताकि जो तुम्हारा मेरिडियन पैसेज है सन का, दैट रिमेन्स अराउंड 12 o'clock, 11:15 और 12:15 तक चल जाता है काम। अगर कभी सेकेंड ऑफिसर एडवांस या रिटार्ड करना भूल जाता है क्लॉक, तो कैप्टन से डांट पड़ती थी उसको। क्यों? क्योंकि मेरिडियन पैसेज 11:30 हो जाएगा या 12:30 हो जाएगा। 12:30 लंच टाइम है, सबका डिस्टर्ब होता है रूटीन। कैप्टन और सब साइड लेते रहेंगे, लंच के लिए लेट जाएंगे, फिर कुक को ओवर टाइम देना पड़ता है। हाँ, सारा अपसेट हो जाता है प्रोग्राम। सो मेरिडियन पैसेज 12 बजे के आसपास अगर रहेगा तो लाइफ ठीक चलता रहेगा। सो दैट इज हाउ द क्लॉक्स आर एडवांस्ड एंड रिटार्डेड। ओके, वी विल डिस्कस दैट टुडे। सो ऑब्जर्वर्स मेरिडियन, इंफीरियर मेरिडियन का लिए डायग्राम मैंने बनाया था। अगर ये मीन सन है तो LMT बन गया, बिकॉज सन रिलेटेड जो टाइम का मेजरमेंट है वो इंफीरियर मेरिडियन से है। ट्रू सन या थोड़ा आगे होता है सन के या थोड़ा पीछे होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन ऑफ टाइम। ट्रू सन की स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा, इट इज़ इरेगुलर स्पीड, वी सॉ दैट, but mean sun is at a constant speed. So the difference is called the equation of time. If apparent time is more than the mean time, equation of time is negative. Equation of time is considered as component of composed of two components. Here we discussed due to eccentricity of the Earth's orbit and due to obliquity of the ecliptic. Sign of EOT implies whether mean sun is ahead or true sun. तुम लोगों ने देखा होगा नॉटिकल एल्मेनाक में इक्वेशन ऑफ टाइम में नेगेटिव या पॉजिटिव साइन था क्या कि नहीं था? नो सर। नहीं था, क्योंकि जरूरत नहीं है लिखने की, उसके बगल में तो मेरिडियन पैसेज का टाइम दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली तुमको पता चल जाएगा इक्वेशन ऑफ टाइम नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव मीन सन इज अहेड, नेगेटिव मीन्स ट्रू सन इज अहेड। एल्मेनाक से ये देखो एक दिया हुआ एक्सट्रैक्ट, इक्वेशन ऑफ टाइम में पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है क्योंकि बगल में मेरिडियन पैसेज है। मेरिडियन पैसेज 12:02 है, ये LMT है, LAT 12 बजे हमको मालूम है। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टाइम क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव?
पॉजिटिव। सर पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। और सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे का अगर निकालना होगा तो क्या कैसे निकालोगे? यहाँ तो 0 आवर और 12 आवर का दिया हुआ है। इंटरपोलेट कर लोगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टाइम हमेशा चेंज होता रहता है, तो इंटरपोलेट कर लोगे। गुड। सो apparent time is defined as the time measured at the meridian of the true sun. Mean time is defined as the time measured at the meridian of the mean sun. Greenwich apparent time is the westerly hour angle of the true sun measured from the inferior meridian of GMT. कल ये सब हमने डायग्राम्स बना के देख लिए थे। GMT is the westerly hour angle of the mean sun. LAT is the westerly hour angle of the true sun from the observer's inferior meridian, और LMT mean sun. लोकल साइडेरियल टाइम और ग्रीनिच साइडेरियल टाइम भी हमने देख लिया। ये कौन से मेरिडियन से मेजर होता है? ऑब्जर्वर्स मेरिडियन। ये ऑब्जर्वर्स मेन मेरिडियन है, इसमें एंटी मेरिडियन में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि सन इन्वॉल्व नहीं है। तो फ्रॉम ग्रीनिच मेरिडियन टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस वेस्टवर्ड इज द ग्रीनिच साइडेरियल टाइम। फ्रॉम ऑब्जर्वर्स मेरिडियन वेस्टर्ली टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस लोकल साइडेरियल टाइम। Okay, now we come to the zone time. So थोड़ा सा स्लाइड्स हैं तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में मैं बोर्ड में भी करके बता दूंगा। Sun covers 360 degrees of longitude in 24 hours due to rotation. Therefore, in 1 hour it will cover how many degrees? कल हमने सब कैलकुलेट किया था, 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री 1 घंटे में। तो all 360 degree longitudes are divided into 12 zones of 15 degrees each. अब तुम बोलोगे 12 जोन क्यों है? 24 जोन होने चाहिए, 12 क्यों है? सर टाइम डिफरेंस अलग अलग। 2 zones from Greenwich, East and West, plus and minus. 15 डिग्री है टिल जोन 12, आइदर साइड, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है। आगे चल के डायग्राम में और देख लेंगे। द टाइम इंडिकेटेड इन ईच जोन इज कॉल्ड जोन टाइम and will always be in whole number, and the sign indicates if the hour has to be added or subtracted to reach GMT time. ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा देख लो एक बार। इंडिया का जोन टाइम क्या है? +5:30 +5:30। गलत कैसे बोल दिया तुम लोगों ने? +5:30 ईस्टर्ली सर। +5:30 है जोन टाइम या -5:30 है? Sir, zone time -5:30 and GMT is +5:30. तो प्लस क्यों बोला किसी ने? क्या क्या मन में ख्याल आ रहा था जब प्लस बोला? GMT का आगे। इसीलिए मैं कह रहा था लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। जोन टाइम का जो साइन होगा, साइन इंडिकेट्स इफ द आवर हैज टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू रीच GMT। इस समय इंडिया में क्या टाइम है? मान लो 11:30 बजे हमने क्लास स्टार्ट किया, इंडिया का टाइम 11:30 है। GMT क्या होगा? 6 o'clock. 6 o'clock। तो तुमने लोकल टाइम में माइनस किया कि प्लस किया? माइनस किया। तो ये ध्यान रखो, जोन टाइम का साइन वो होगा जो तुम करोगे GMT लाने के लिए। तो इंडिया का जोन टाइम -5:30 है, क्योंकि इंडिया के टाइम में, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, आई एम यूजिंग अनदर टर्म नाउ, नॉट जोन टाइम, आई एम यूजिंग स्टैंडर्ड टाइम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जोन टाइम, स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन। टाइम जोन अलग है, स्टैंडर्ड टाइम अलग है, जोन टाइम अलग है। तो
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से तुम जोन टाइम 5.5 घंटा माइनस करोगे तो जीएमटी आएगा। इसीलिए इंडिया का जो जोन है वो -5.5 है। ये कुछ एक पिक्चर है जोन का, देख लो। यूके तो तुमको सबको दिख रहा होगा, बीच में 0 0। यू कैन सी दैट वन इन द सेंटर 0। मेरा कर्सर है वहां पर, कर्सर को मैं ऊपर ले जा रहा हूं। ये यूके है, 0 दिख रहा है? यस। ओके, लेकिन 0 एक सिंगल लाइन क्यों नहीं है? 0 के दोनों लेफ्ट और राइट फैला हुआ क्यों है? ब्रॉड है। तो वो 7.5 डिग्री इस साइड और 7.5 डिग्री उस साइड, 15 डिग्री का जोन। यस, वी सेड दैट ईच जोन इज 15 डिग्रीज। तो 0 को सेंटर अगर हम पकड़ लें, 0 को सेंटर पकड़ लें तो 7.5 डिग्री ईस्ट और 7.5 डिग्री वेस्ट मिला के कितने डिग्री हो गया टोटल? 15 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर 0 है, जीएमटी रखेंगे सारे लोग। जो भी कंट्री इसमें आ रहा है वो जीएमटी रखेगा। क्या क्या कंट्री आ रहा है यहाँ देख लो। स्पेन है, ये फ्रांस है, यूके है, ये सब लोग जोन टाइम 0 रखते होंगे। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ भी। उसके बाद -1 कितने लॉन्गिट्यूड से कितने लॉन्गिट्यूड होगा? 7.5 to 22.5। 7.5 ईस्ट से लेके 15 डिग्री ऐड करोगे तो 22.5 ईस्ट, ठीक है। और +1 करूंगा तो +1 कितने डिग्री से कितने डिग्री होगा? सो वेस्ट हो जाएगा 7.5 वेस्ट टू 22.5। 7.5 वेस्ट से 22.5 वेस्ट। तो लेट्स कम टू इंडिया। इंडिया का जोन टाइम क्या है? -5। -5:30। -5.5। इंडिया देखो 5 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है। हाँ, ईस्टर्न इंडिया और टोटल सारा 6 में आ रहा है और ये 5 में आ रहा है। पाकिस्तान का क्या टाइम है? पाकिस्तान का मालूम है किसी को कितने आवर्स रखता है? किसी को मालूम नहीं है? सर 5 तुम्हारा 5 नेबर है, नेबर की खबर तो रखनी -5 चाहिए, नेबर की खबर रखनी चाहिए। पाकिस्तान -5 है, बट अगर वर्टिकली हम लॉन्गिट्यूडनली अगर देखें तो वेस्टर्न इंडिया, ये जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये सारा तो पाकिस्तान और इंडिया का एक ही लॉन्गिट्यूड है ना। बट पाकिस्तान 5 रख रहा है और ये वाले पार्ट इंडिया के 5 होने चाहिए अगर टेक्निकली देखा जाए, बट इंडिया में तो 5.5 ही चलता है। Similarly, if you see how much time does Bangladesh keep? 6 बांग्लादेश का भी नहीं पता किसी को? बांग्लादेश कीप 6 आवर्स, -6। लेकिन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, असम एंड ऑल, इट इज बियॉन्ड बांग्लादेश, बट स्टिल वी आर कीपिंग। व्हाट टाइम डू वी कीप इन असम? 5.5। So the point which I was trying to make yesterday, यहाँ पर सनराइज तो बहुत जल्दी हो जाता है इंडियन घड़ी के हिसाब से, और सनसेट भी जल्दी हो जाता है। शाम को 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो जाता है आसाम में, लेकिन वही बॉम्बे में, गुजरात में 7:30 पौने 8 बजे अंधेरा होता है। कितना डिफरेंस है 2 घंटे का, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस। बट व्हाई डू वी कीप द सेम टाइम इन इंडिया, even though some parts of India is touching 5 hours and some part of India is touching 6 hours? Why do we do this? Can anyone tell me? लॉन्गिट्यूड इसका अलग है। सर सेम रीजन, सिविल लाइफ सर डिस्टर्ब हो जाएगी, जैसे ट्रेन्स के टाइमिंग्स, फ्लाइट्स के टाइमिंग्स सब अलग अलग हो जाएंगे पूरे इंडिया में। हाँ, सेम रीजन है, सेम कंट्री है, सब कुछ हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा।
तो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। कोई भी कंट्री अगर मान लो अलग अलग जोन में आ रही है, बट ताकि उनकी वर्किंग में डिस्टरबेंस ना हो, they prefer to keep one time which is called the standard time. That's why we say IST, Indian Standard Time. तो हम अपना सारा शेड्यूल, बिजनेस के टाइमिंग, इंस्टीट्यूट के टाइमिंग, गवर्नमेंट ऑफिस के टाइमिंग सब करना चाहें तो ठीक होता है। वरना मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं या कोई भी एक कंपनी के ऑफिस है, ब्रांचेस सब जगह ऑल ओवर इंडिया हैं। अगर 9 बजे ऑफिस खुलना है दिल्ली के टाइम से हिसाब से, तो असम वाला भी 9 बजे खुलेगा, बॉम्बे वाला भी। वरना लोकल टाइम के हिसाब से चलेंगे तो वही हाल होगा कि जब इंडिया का ऑफिस खुल रहा है तो जापान का ऑफिस बंद हो रहा है, क्योंकि वहाँ शाम हो चुकी है और अमेरिका वाले अभी उठे ही नहीं है क्योंकि सो रहे हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस जिन कंपनीज का, उन लोग को ये प्रॉब्लम होती है। जैसे ऑफिस खुलते हैं इंडिया में, सबसे पहले चाइना जापान का काम करते हैं, भाई ऑफिस बंद होने वाले हैं, पहले उनके काम कर लो, उनकी इंक्वायरीज को हैंडल कर लो। और शाम को जब इंडिया का काम बंद होने वाला होता है 6 बजे, अमेरिका खुल रहा होता है, तो 7 बज जाते हैं अमेरिका की क्वेरीज को हैंडल करते करते। भाई अभी खुला ऑफिस, उनका भी काम खत्म कर दो। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइम्स हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। बट देर आर सम कंट्रीज विच आर वेरी ब्रॉड, लाइक USSR, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, USA। तो यहाँ पर ये लोग फिर अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम इन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनका ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में। इनफैक्ट अभी आई वॉज रीडिंग सम टाइम बैक दैट इंडिया में भी ये लोग अभी शायद कोशिश कर रहे हैं कि आसाम वाले एरिया का टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। इंडिया में भी 2 टाइम कर देंगे, क्योंकि डे लाइट सेविंग टाइम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो थोड़ा सा कुछ टाइमिंग चेंज करेंगे डे लाइट सेविंग टाइम, ताकि उनका शाम भी जल्दी, मतलब उसी हिसाब से हो, डे लाइट सेविंग टाइम उनको मिले, क्योंकि सुबह के उनके बहुत डे लाइट वेस्ट हो जाता है। जब वो स्टार्ट करते हैं अपना ऑफिस 9 बजे, एक्चुअली लोकल टाइम के हिसाब से देखो तो 10 बज चुके होते हैं उनके, मतलब सूरज बहुत ऊपर आ चुका होता है। तो मॉर्निंग दे आर वेस्टेड नो, कुछ काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, इतना सूरज ऊपर उठ गया। तो अगर उनका क्लॉक अगर उस हिसाब से और एडजस्ट कर दिया जाएगा तो दे विल स्टार्ट द डे अर्ली। So has everyone understood this diagram? Zone time, 12 जोन यहाँ पर बने हुए हैं। अगर तुम देखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 12 जोन इस तरफ भी बने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन एक साइड माइनस, एक साइड प्लस है, तो दोनों मिला के 24 हो गए। 24 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरा ग्लोब कवर हो गया। तुम देख लो, अटलांटिक ओशन भी कवर्ड है, पैसिफिक ओशन भी कवर्ड है, इंडियन ओशन भी कवर्ड है, सारा एरिया कवर्ड है। क्लियर एवरीवन? जैसे 0 में 7.5 ऑन आइदर साइड है, ऐसे 180 में भी 7.5 ऑन आइदर साइड है। जब कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, इट इज इम्प्रैक्टिकेबल फॉर ईच प्लेस ऑन अर्थ टू मेजर टाइम फ्रॉम इट्स ओन इंफीरियर मेरिडियन। फॉर ईच प्लेस ऑन द अर्थ, जैसे हमारे इंडिया है, आसाम का टाइम अलग, नागपुर का टाइम अलग, गुजरात का टाइम अलग। So it is impossible to measure time from each inferior meridian.
It would make life difficult for each state, city and locality would have different local time. Nor it is convenient to maintain time from one common inferior meridian, as there would not be uniformity of time with the day. To obviate this, a system of standard time has been developed by all countries of the world. The continents of Earth are divided into several areas, and each area keeps time based on somewhat central meridian through that area. Each of these areas are referred to as time zone. इंडिया कौन सा मेरिडियन को लेके चल रहा है, कोई बता सकता है? सर मेरिडियन इलाहाबाद यूपी से पास होता है 5:30 IST कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री है। degrees, sir, east, and 90. 32 degrees, sir. नागपुर से पास होता है इलाहाबाद, नागपुर सेंटर में आता है बोलता है कोई। एनीवे लॉन्गिट्यूड क्या है उसका? 82.5 degrees, sir. 82 degree 30 minutes, sir. चलो देखते हैं, यहाँ इसमें देखते हैं कहाँ पर है। आजकल काफी चीजें हैं हमारे पास देखने के लिए। थोड़ा ज्यादा घूम गया। क्या दिख रहा है इंडिया का? सर 70 डिग्री से 90 डिग्री ईस्ट के बीच में। इलाहाबाद बोला था किसी ने, कितना इलाहाबाद देखते हैं। प्रयागराज से प्रयागराज। आजकल प्रयागराज बोलते हैं। नागपुर कोई कह रहा था मुझे, नागपुर सेंटर है, 79 ईस्ट दिखा रहा है यहाँ तो नागपुर। मुझे तो लग रहा है थोड़ा गलत है ये मैप। प्रयागराज से 82.5 ईस्ट, 82.5 को डिवाइड करो। सर मिर्जापुर 82.5 ईस्ट को डिवाइड करो जरा। कैलकुलेटर है किसी के पास? एटी 82.5 को डिवाइड करो 15 से, कितना आता है? 530 530 आ रहा है ना। तो इंडिया इज यूजिंग दिस लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्रीज टू मेंटेन द टाइम। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम देखो, वो बिलासपुर से निकल रहा है 82.5 से। हाँ, क्योंकि तुम देखोगे हालांकि जो मेन लैंड है उससे थोड़ा ईस्ट है, लेकिन हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाता है ना। तो एक किस्म से सेंटर पकड़ के हम लोग इस टाइम को हमने स्टैंडर्ड टाइम बना लिया। इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन? Yes or no? Yes. Yeah. So coming back to our slide, India has standard time of -5.5 hours. To say that time zone of India is -530 based on 82.5 degree east meridian. जिन कंट्रीज का बहुत ज़्यादा एक्सटेंट है ईस्ट वेस्ट का, they use different standard time of different areas. This you must have noticed. अगर तुम ऐसी कंट्रीज में गए हो
So different ports sometimes have different times. The standard time kept by various countries are listed in the Nautical Almanac and in the ALRS. If the time kept by the country is behind GMT, it is prefixed by plus. And in case it is ahead of GMT, it is prefixed by minus sign. तो इंडिया ahead है GMT के या पीछे है? Ahead. Ahead Sir, है because the Earth is rotating west to east. तो सनराइज पहले जापान में होता है, पहले इंडिया में होता है, बाद में यूके में होता है. तो हमारे यहाँ सनराइज पहले हो जाती है तो हमारा टाइम अहेड है. बट नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि इंडिया के टाइम से वो माइनस करोगे तो जीएमटी आएगा. तो जीएमटी अराइव करने के लिए साइन आई है. तो उस तरफ वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में तो प्लस करोगे तो जीएमटी आएगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हो तो माइनस करोगे तो जीएमटी आएगा. तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये तुम लोगों को सारे माइंड में क्लियर रखने चाहिए. सेकेंड ऑफिसर घड़ी का काम तुम्हारे हाथ में है. एंड ऑल्सो एज अ नेविगेटर you should know all these things very, very clearly. So time kept by countries 5 hours behind GMT, it is listed as +5, indicating that 5 hours to be added to the standard time of the country to get GMT. I hope काफी time ये discuss हो गया तो it should be clear. So now if time जोन बने हैं, डिफरेंट टाइम्स हैं हर जगह में. कंट्री का तो चलो वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली बिकॉज वी आर फिक्स्ड, बट द शिप इज मूविंग ऑल द टाइम. शिप इज मूविंग ऑल द टाइम. सो हाउ डू वी फिक्स द टाइम ऑन द शिप? बिकॉज वी आर नॉट इन एनी कंट्री. लेट अस से वी आर मूविंग अक्रॉस द ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और व्हाटएवर. अगर हम किसी कंट्री में नहीं हैं तो हमको कैसे पता चलता है कि हमको कितने आवर एडवांस करना है, कितने आवर रिटार्ड करना है और कौन सा टाइम हमको मेंटेन करना है? एनीबॉडी कैन गिव मी एन आइडिया? By the longitude. लॉन्गिट्यूड से हम निकाल सकते हैं कौन से टाइम जोन में हम हैं. ठीक है, जोन टाइम, टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम, शिप्स मीन टाइम, लोकल मीन टाइम, इन सबको अच्छे से समझना जरूरी है. टाइम जोन हम निकाल सकते हैं लॉन्गिट्यूड से. तो हम लोग वो टाइम रखते हैं, क्लॉक आधा घंटा एडवांस या रिटार्ड कर देते हैं. अगर शिप तो डेली मूव कर रहा है, फिर अगले दिन या 1-2 दिन बाद का टाइम जोन देख लेते हैं. फिर प्रैक्टिकली अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला था, क्या देखते हैं हम लोग? हम टाइम कब आगे पीछे करते हैं सर हमारे पास मेरिडियन पैसेज. अगर तुम्हारा शिप टाइम 12 बजे के आसपास हो रहा है तो इसका मतलब तुम करेक्ट टाइम जोन में हो. 11:15 से लेकर 12:15 के बीच में अगर मेरिडियन पैसेज हो रहा है तो तुम करेक्ट टाइम जोन में हो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टाइम भी कभी 14 या 15-16 मिनट से ज़्यादा नहीं होता. और अगर तुम्हारे जहाज में प्रैक्टिस है नून साइड लेने की तो तुम्हारा लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगा. सो किस तरफ जाने से एडवांस होता है, किस तरफ जाने से रिटार्ड होता है? ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो एडवांस होगा. हाँ, तो अभी हमने बोला इंडिया इज अहेड ऑफ जीएमटी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज अहेड. यानी तुम अगर ईस्ट कोर्स में जा रहे हो तो क्लॉक को एडवांस करोगे क्योंकि वहाँ की घड़ियाँ आगे चल रही हैं. एंड इफ यू आर गोइंग वेस्ट देन यू विल रिटार्ड योर क्लॉक फॉर 1 hour फॉर एवरी जोन ट्रेवर्स्ड. ठीक है, दिस प्रैक्टिकली यू हैव डन, सो you cannot forget. It is always easy to remember. Yes. सर एक क्वेश्चन है सर. बोलो.
सर सनसेट सनराइज अलमनाक से मैं निकाला और गूगल से सर्च किया तो डिफरेंट आता है, ऐसा क्यों आता है? क्या आता है? गूगल से फाइंड आउट किया सनसेट सनराइज सर, और अलमनाक से फाइंड आउट किया तो दोनों में डिफरेंट आ रहा है। तो गूगल किस पे फाइंड आउट? 15 मिनट 20 मिनट का आ रहा है। कितना डिफरेंस है? 15 या 20 मिनट का सर। 15-20 मिनट। तो गूगल में तुमने क्या टाइप करे थे? सनराइज सनराइज सनसेट, यस सर। कहाँ पर? कहाँ का? इंडिया का सर। इंडिया का। यस सर। तो एल्मनेक में कहाँ का देखा तुमने? इंडिया का ही वो। इंडिया का देखा तुमने? यस सर। एल्मनेक में तो इंडिया नहीं लिखा होता है। नहीं सर, लॉन्गिट्यूड पे सर। एल्मनेक में लॉन्गिट्यूड रहता है? कौन सा डेट का देखा एल्मनेक? मेरी क्या रेट हो जाएगी? बट ये जहाज पे ही किया था और आप आगे कराओ सर। तो चिल्ला क्यों रहा है? पूछ नहीं, नहीं नहीं। सकता हूँ कि आगे क्यों कराओ? बच्चे के मन में कोई प्रश्न है तो ठीक है, मे बी वी ऑल विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। आई वांट टू क्लैरिफाई द डाउट। कई बार हम लोग भी सीख जाते हैं बच्चों से, जहाज पे ही किया था ऐसा सर। कोई इशू नहीं है। थोड़ा डिफरेंट आया। जहाज पे देखा था यस सर, डिफरेंट आया था। और प्रैक्टिकली फिर तुमने टाइम नोट किया तो सुबह उठ के आई मीन, या नहीं? नहीं, प्रैक्टिकली नहीं नोट किया था, बट उसमें कैलकुलेशन किया था और गूगल में देखा था सर। इसमें डिफरेंट क्यों आया, बस यही। वो भी देख लेते तो थोड़ा ठीक रहता, एग्जैक्ट तीनों पता चल जाता। यस सर। Anyway, the point which is the times given in the almanac are all GMT, I told you, but they can be used as LMT also for the sun. इंडिया का सनराइज तुमने शिप में देखा तो थोड़ा सा मेरे को क्लैरिटी नहीं है तुमने कैसे और कहाँ क्या देखा, बट इंडिया का जो सनराइज है स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर देखोगे तो जैसे मैंने बोला असम में तो बहुत जल्दी राइज हो रहा है और बॉम्बे में लेट राइज हो रहा है, ठीक है? तो कौन से मेरिडियन को लेके वो देख रहा है और कहाँ पर कहाँ का सनराइज है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन या डेटा अगर और दोगे तो क्लैरिटी होगा। तो लेट मी चेक माई सेल्फ विद एल्मनाक एंड गूगल एंड सी व्हाट डिफरेंस इट इज़ कमिंग इन, इट इज़ ड्यू टू व्हाट, ठीक है? क्योंकि जब हम लोग बुक्स वगैरह देखते हैं और हमारे टाइम तो गूगल वगैरह नहीं था तो ये सब हम लोग इसमें नहीं घुसते थे, बट थ्योरेटिकली आई कैन टेल यू कि लोकल टाइम से तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि तुम उस समय ना तो किसी स्टैंडर्ड टाइम में थे शिप में जब थे, जोन टाइम में डेफिनेटली थे, बट जोन टाइम और एलएमटी में भी फर्क है। जोन टाइम विल कंटिन्यू फॉर 15 डिग्रीज, बट एलएमटी तो तुम्हारा कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। और एक्चुअली अगर तुम जब कैलकुलेट फिजिकली देखते तो तुम्हें और थोड़ा क्लैरिटी हो जाता। तुमने नून साइड लिया है कभी? यस सर, लिया था। लिया है। तो मेरिडियन पैसेज कैसे कैलकुलेट किया होगा तुमने? याद नहीं है। क्योंकि जहाज तो मूव ही कर रहा है ना कंटिन्यूस। यस सर। जहाज कंटिन्यूस मूव कर रहा है। तुमने सुबह ही मॉर्निंग लॉन्ग बैकग्राउंड जब लिया उस समय तुमने डिसाइड कर लिया इतने बजे मेरिडियन पैसेज होगा, कैप्टन को बताना भी पड़ता है इतने बजे मेरिडियन पैसेज है कि नहीं? लेकिन तुम उस जगह तो अभी पहुंचे नहीं हो। अगर 8:30 बजे लॉन्ग बैकग्राउंड लिया और 12 बजे मेरिडियन पैसेज है, तुम तो 12 बजे भी पहुंचे नहीं हो वहां पर, तुमको कैसे पता चला वहां पहुंचे? डीआर लॉन्ग लिया तुमने, तो इसीलिए 10 मिनट पहले से ही खड़े होके देखते रहते हो कि मिस ना हो जाए, है कि नहीं? है ना? तो इस तरीके से एक जो टाइम है वो लोकल टाइम का इन सब चीज़ों से थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो जो सनराइज में डिफरेंस आया है, लेट मी फिगर आउट क्यों है, गूगल और ये मैं देख लेता हूँ एक बार, बट देयर विल बी अ स्लाइट डिफरेंस जो कंट्री का है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है और गूगल ने कौन सा लॉन्गिट्यूड लिया है, वी विल सी। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर।
So do little study and research on this next time when you're on the ship, and physically भी देख लो कितने बजे होता है सनराइज सनसेट और तुम एग्जैक्ट उस समय कौन से लॉन्गिट्यूड में हो, तो थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगा. ठीक है. So we come to the next point now, international date line. डेट लाइन क्रॉस किया हुआ कई लोगों ने? यस और नो? कोई पैसिफिक ओशन नहीं गया है? ईस्ट को वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू चाइना गए हो? दोबारा बोलो, मेरे को समझ नहीं आया. No one has been from China to USA West Coast or USA West Coast to China Japan? बल्क कैरियर, कंटेनर शिप, कोई नहीं? I'm surprised. किसी ने पैसिफिक ओशन क्रॉस नहीं किया? अच्छा, मेरा तो एज अ कैरेट जो मेरा एकदम फर्स्ट ट्रिप था, दैट वाज अ ग्लोबल ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड. बट एक ही बार हुआ वो. बॉम्बे से चले, सुएज कनाल, मेडिटेरेनियन सी, अमेरिका ईस्ट कोस्ट, अमेरिका ईस्ट कोस्ट से पनामा कैनाल क्रॉस किया, पैसिफिक ओशन क्रॉस किया, ताइवान, फार ईस्ट होते हुए सिंगापुर, वापस बॉम्बे. तो पहला ट्रिप ही ग्लोबल ट्रिप था मेरा. इक्वेटर भी क्रॉस कर लिया, उसमें इंटरनेशनल डेडलाइन भी क्रॉस कर लिया, ग्रीनिच मेरिडियन भी क्रॉस कर लिया सारा. सो थ्योरेटिकली ओके, लेट अस फिगर आउट व्हाट इट इज. अगर प्रैक्टिकली किसी ने किया होता तो जवाब देते तुम लोग. इंटरनेशनल डेडलाइन का क्या मतलब है और वो क्यों है वहां पे? किसी को आइडिया इसका कुछ? ओके, सो लेट अस गो थ्रू इट. फिर मैं थोड़ा उसको ग्लोब में भी कोशिश करूंगा समझाने का. द इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन on the surface of the earth that runs from the north pole to the south pole and demarcates one calendar day from the next. It passes through the middle of the Pacific Ocean, roughly following the 180-degree longitude, but it deviates to pass around some territories and island groups. जैसे जोन टाइम कुछ कंट्रीज अपने आप में एडजस्ट कर लेती हैं, जैसे इंडिया एक ही जोन टाइम फॉलो कर रहा है, इवन दो हमने देखा कि ईस्ट और वेस्ट में 1 घंटे का फ़र्क है. बांग्लादेश 6 रखता है, पाकिस्तान 5 रखता है और दोनों इंडिया के बीच में है, बट हमने 5.5 डिसाइड किया. सिमिलरली देयर आर सम कंट्रीज विच आर फॉलोइंग 180 डिग्री के ईस्ट में भी और 180 डिग्री के वेस्ट में भी. तो एक कंट्री में अलग अलग डेट होगा तो वो तो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा. Sometimes there are islands in the Pacific Ocean which belong to one country, maybe USA or maybe Philippines or China or whatever. मान लो एक कंट्री के कंट्रोल में 10 आइलैंड हैं, 5 आइलैंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, 5 आइलैंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड में है, तो वो अलग डेट कैसे रखेंगे? तो वो एक ही डेट रख लेते हैं. इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन एग्जैक्टली 180 डिग्री को फॉलो नहीं कर रही है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, बट बहुत कन्वीनियंट था हमारे लिए 180 डिग्री, क्योंकि पैसिफिक ओशन में तो बहुत कम कंट्रीज को फर्क पड़ रहा है. मोस्टली इट इज पासिंग थ्रू द वाटर, सो इट डजंट अफेक्ट टू मेनी कंट्रीज. A ship crossing the international date line eastbound subtracts 1 day or 24 hours so that the calendar date to the west of the line is repeated. इसका मुझे एग्जाम्पल दो तुम
अगर हम पैसिफिक ओशन देखें तो कौन सी कंट्री से कौन सी कंट्री जा रहा होगा शिप? A ship crossing the international date line or 180-degree longitude eastbound subtracts 1 day or 24 hours so that the calendar date to the west of the line is repeated. Can anyone tell me? Give me an example. Pacific Ocean में कौन सी कंट्री से कौन सी कंट्री जा रहे होगे तुम? So Japan to South America. Japan to South America. Japan to South America. Which coast? East coast or west coast? So West Coast. वेस्ट ही जाएंगे, ईस्ट तो फिर घूम के जाना पड़ेगा। वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कहीं से ऑस्ट्रेलिया से भी शायद जा सकते हो। सो उस समय तुम्हारा कोर्स क्या होगा? ईस्ट बाउंड ही होगा हमेशा 090। यस Yes sir. ग्लोब में चलते हैं दोबारा एक बार। ये अमेरिका वेस्ट कोस्ट है, ये पैसिफिक ओशन है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा नीचे और ऊपर जापान। अभी वहाँ तूफान चल रहा शायद, तो ये है, आई डोंट नो। ये बीच में है 180 डिग्रीज। तुम देखोगे वन 170 ईस्ट लिखा है, 170 वेस्ट लिखा है, और 180 अगर बड़ा करूंगा तो दिखेगा 180 ही लिखा होगा। एनीवे, ओके। So if you are going from Japan to US, your course will always be 090. You are going in which direction? You are going in the eastern direction always, even though you will be crossing from eastern hemisphere to the western hemisphere. Yes or no? थोड़ा देखो, माइंड का ओरिएंटेशन तुमको चेंज करना पड़ेगा। अभी अगर मैं 0 में हूं, अगर मैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में हूं, तो राइट साइड वाला मेरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और लेफ्ट साइड वाला मेरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। नजर आ रहा है सबको, ईस्ट और वेस्ट? एवरीवन कैन सी द ग्लोब? Yes, sir. यस सर। अब अगर इसको मैं ईस्ट जा रहा हूं कंटिन्यूअस, तो मैं क्या कर रहा हूं? क्लॉक को क्या कर रहा हूं मैं? एडवांस कर रहा हूं ना। एडवांस। क्लॉक को मैं एडवांस कर रहा हूं, ईस्ट जा रहा हूं। एंड अब मैं एंटी मेरिडियन पहुंच गया हूं। इक्वेटर और एंटी मेरिडियन का क्रॉसिंग है, 180 पहुंच गया। अब मेरे राइट में कौन सा हेमिस्फीयर है? वेस्टर्न। वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। थोड़ा सा ओरिएंटेशन अपने माइंड को तुमको ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि कई न्यूमेरिकल अगर ऐसे आ जाते हैं तो फिर जंप कर गया वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, तो कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है। लॉन्गिट्यूड डी लॉन्ग तो निकाल लिया, लेकिन लॉन्गिट्यूड निकालने में कंफ्यूज हो जाता है। तो माइंड का ओरिएंटेशन तुमको ठीक रखना है, ठीक है? तो अगर 170 ईस्ट से 170 वेस्ट मेरा शिप जा रहा है, मैं पीछे से तो घड़ी को क्या एडवांस करके आ रहा था ना। When I was going, I was advancing my clocks, yes or no? किसी ने बोला था एडवांस करेंगे घड़ी? यस।
तो अभी 179 ईस्ट से 179 वेस्ट अगर मैं क्रॉस करूंगा तो मैं डेट को क्या करूंगा, एक दिन पीछे करूंगा एक दिन आगे करूंगा? पीछे सर। पीछे हो जाएगा ना सर? एडवांस रिटार्ड होगा, क्यों? सर वेस्ट We will take a break here. Okay, We sir. will take a break here for 15 minutes.